Hello everyone and welcome to Vivolve series of birth numbers 1 to 9. In this series we are going to cover the qualities, traits and suggestions as per your birth numbers. I will try my best to guide you as much as I can as per these numbers, and I would request you to take this guidance in two ways. One, accept the traits that you feel cannot be changed so that it helps you to understand yourself and others. And second, where you feel some changes can be made, where the traits are actually troubling you in your life or they are a problem for others who are living with you, try to change them. So please take that guidance and make the maximum out of this. So before we begin, I would request you to please go back and watch episode 1 where I explained the difference between the birth numbers and the destiny numbers and how to calculate them. It will be easier for you to understand what I'm talking about here. So I would like to give you a little basic understanding of numerology and how these traits are calculated. So every number that is from 1 to 9, we have 9 numbers. Every number is given a ruling planet. Okay, so we have 8 planets in our solar system. Now we'll remove Earth from there because we are living on it. So we are left with only 7 planets. So these 7 planets plus the sun and the moon. So these 9 celestial bodies are going to rule numbers 1 to 9, and as per numerology, every celestial body is given one number. Now when you're born on any of these dates, you are supposed to carry the traits of these planets. Okay, so it is automatic that when you're born under the date of birth of sun, that is 1 for example, so you will have traits of sun. So similarly, when you will be born under any of these planets with the other numbers assigned, you will have the traits of these planets. Now basically we all should always try to enhance our positives and try to work on our negatives. Also, apart from this numerology, these numbers, it might happen that you do not find 100% accuracy here. Reason being, there are other lot many numbers which are involved in our date of birth, that is your month and your year and your moon sign, your sun sign. All these things also play a very important role. So it's a permutation combination of a unique chart that you have. So over here I'm only discussing the numerology birth numbers. So these other things also play a very important role. Next and the last most important thing before I start is, you might find that two people with the same birth number might not be same. They will have some basic differences. Now why does that happen? Over here the role of soul awakening comes. Every person, every body, every soul that is going through the earth is going through an evolution. So we can say that you are 5 years old, she is 18 years old, he is 20 years old. That is the age of the body, but the age of the soul is very different from all these things. So it depends at what level is this soul operating. Okay, you can operate from a higher level if your soul is very much evolved and awakened, or you might be operating from a very low level. So what happens is, when you are operating from a very low level plane, your negative traits start overpowering you. It is very difficult for you to work on yourself. So eventually you accept it and your negatives are highlighted. On the other hand, if you are operating from the higher plane, your positive traits are going to be used very well. You will have them enhanced, and you will know it very well how to overcome your negative traits. You will have a good control over them. That is the difference that you will find in two different people with the same birth number. So this will help you understand yourself and others very well. So here I have covered the basic information, and now the turn is of number 3. Number 3 people are ruled by Jupiter. Jupiter is the biggest planet of the solar system. So again, from the planet traits itself, we can know that we are going to talk about something very, very big. But before we get into the details of the traits of these people, let's first know a little bit about number 3. अगर आप नंबर 3 को देखें, एक्चुअली हर नंबर और हर प्लैनेट जिससे भी वो नंबर कनेक्टेड होगा ना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी. कोई भी चीज़ को इमेजिन नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी. आपके पास सारे प्रूफ्स होते हैं. दैट्स ऑल वी आर सपोज टू सी. तो अगर आप
अपने ट्रेट्स देखना चाहते हो, सो यू लुक एट जुपिटर एंड यू लुक एट नंबर 3। नंबर 3 का सिंबल ओम की तरह होता है, और ओम का मतलब है विजडम। जिस इंसान का नंबर ही विजडम है, दैट मीन्स दे विल ऑलवेज लुक फॉर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। बहुत ज्ञान प्राप्त करने का इनका क्यूरोसिटी होता है। या तो इनके पास होगा ऑलरेडी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्लेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम। अदरवाइज आप इनको देखोगे कि हमेशा ज्ञान में घुसे रहेंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत क्यूरियस होते हैं, इनको सब जानना है। और ये डिफरेंट आप ये देख सकते हो कि किस डिफरेंट एज के हैं। अगर यंग हैं तो शायद फिटनेस के बारे में ढूंढ रहे होंगे, अगर मिडिल एज है तो हो सकता है अपने करियर के बारे में स्किल्स देख रहे होंगे, अगर ओल्ड एज है तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे होंगे। टॉपिक्स बहुत डाइवर्स हो सकते हैं, लेकिन क्यूरोसिटी इज़ वेरी हाई, और उस क्यूरोसिटी को ठीक करने के लिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। नंबर 3 के काफ़ी सारे ट्रेट्स आपको नंबर 1 की तरह दिखेंगे। दे आर पावरफुल, very knowledgeable, extremely hardworking. But the only difference between number 1 and number 3 is that number 1 you will find them to be very stubborn. Number 3 stubborn नहीं होते। उनकी stubbornness बाहर की दुनिया में नहीं दिखेगी, अंदर भले ही हो stubborn to find some information or to satisfy their curiosity, they are into something, वो जिद हो सकती है अंदर, लेकिन बाहर ये जिद नहीं दिखेगी। You will not find them very rebellious people like number 1s can be. Second very important trait is why I'm comparing 1 and 3 is because 3 and 1 have a lot of similar traits. 1 is Surya, which is like a king, and 3 is a guru. तो 1 most of the times king किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन अपने गुरु की सुनेगा। तो 3 नंबर वालों के साथ अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है, इफ़ यूर पार्टनर्स विद ईच अदर, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जस्ट बिकॉज नंबर 1 झुकता नहीं है किसी के आगे। उसके साथ अगर आपको काम करना है तो नंबर 3 अगर आपके साथ है, सो इट्स गोइंग टू वर्क रियली वेल। नंबर 3 वाले लोग का एक और ट्रेट ये होता है कि यू विल फाइंड देम अ लिटिल इंट्रोवर्ट पीपल। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, दो दे आर वेरी नाइस टू टॉक टू। इनको बात करना बहुत अच्छे से आता है, अगर बात करनी पड़ गई तो बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, बट अदरवाइज दे विल काइंड ऑफ रेजिस्ट दैट काइंड ऑफ इंट्रैक्शन विद पीपल। इनका इंटरेस्ट सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, मैक्सिमम टाइम इन लोगों का जाता है पैसा कमाने में, या फिर आप ये समझ सकते हो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर देयर ओन फैमिली। They might be busy, they might not be spending a lot of time with their family because they are doing something for them, for their comfort, either about money. Yes, they are definitely wanting to earn a lot of money so that they can give that comfort to their family. In spite of working so hard and in spite of earning so much money, you will always find these people worried for money. Now why is that happening? Because इनका एक और भी बहुत strong trait ये होता है, ये कभी किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहते। इनको डिपेंडेंसी बिल्कुल पसंद नहीं आती, किसी से पैसे मांगना नहीं चाहते, किसी भी तरीके की मदद ये किसी से मांगना नहीं चाहते, और उस चीज़ में ये फुलफिल्ड रहें, सेल्फ सेटिस्फाइड रहें, और इनफैक्ट ना किसी से लेना चाहते बट देते बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ द वे जाके देंगे, बहुत ज़्यादा देंगे, और देने के लिए इनको लगता है खुद का प्लस और जितना अबंडेंस मिल जाए बहुत अच्छा है, सो दैट दे कैन गिव। सो दे आर ह्यूज गिवर्स। ह्यूज प्लानट है ना, मैंने कहा हम बड़ी चीज़ों की बात करेंगे तो इनका बहुत बड़ा दिल होता है उस हिसाब से। तो दे आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अदर पीपल। फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। फैमिली को अक्सर शिकायत हो सकती है कि टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं उनके साथ, बिकॉज दे आर ऑलवेज बिजी। पूरी ज़िंदगी इनकी बिजी होने में निकल जाती है, जहाँ पर ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं सो दैट दे कैन गिव अ गुड लाइफ टू देयर फैमिली। एक और नंबर 3 की चीज़ जो बहुत कॉमन पाई जाती है वो होती है कि बड़े ओल्ड ट्रेडिशन के लोग होते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव आप इनको समझ सकते हो, और ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। जुपिटर इज़ अ वेरी ओल्ड प्लैनेट, गुरु है, तो गुरु कभी भी बहुत ट्रेंडी और वो नहीं माने जाते। गुरु को हमेशा ट्रेडिशनल, जिनको ग्रंथों की नॉलेज होती है, प्राचीन काल की नॉलेज होती है, उस तरीके के ट्रेट्स होते हैं। तो इनके ट्रेट्स में ये रिलीजन्स को, ये रिचुअल्स को, ये अपने संस्कारों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उसके हिसाब से इनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला इनके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि ये कल्चर से आते हैं, तो उस कल्चर में सोसाइटी भी है, तो सोसाइटल प्रेशर के अंडर काफ़ी चीज़ें ये कभी कभार कर जाते हैं। इनको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं, इनको लगता है कि मैं समाज में रह के चलूँ। दे आर पीपल्स पर्सन। यू विल नॉट फाइंड अ नंबर 3 वॉकिंग आउट ऑफ द क्राउड, रिबेलियस नहीं होंगे, दे विल नॉट वॉक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे विल ऑलवेज बी विद द क्राउड। सबके साथ मिलजुल के चलना चाहते हैं, सबके साथ रह के चलना चाहते हैं, और दे मेक श्योर कि ये ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेट होता है ये नंबर 3 का, कि वो
सबके साथ रहेंगे लेकिन इंट्रोवर्ट्स होते हैं, सबके साथ उनके व्यूज मिलेंगे, जो भी सब कहेंगे जैसा सबने बोल दिया दे आर रेडी विद इट, यू कैन से इट्स फ्लेक्सिबल। और अगर हम इसको नेगेटिव साइड में देखें तो कह सकते हो कि आप इनके कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज नहीं होते, लोग ऐसा समझ सकते हैं इनको, बट एक्चुअली दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ओके। एंड दे आर, ऐसा नहीं है कि इनको स्ट्रॉन्ग व्यूज दिखा के कुछ दुनिया को दिखाना है, नहीं, दे हैव द स्ट्रेट ऑफ नॉट क्रिएटिंग एनी न्यूसेंस एनीवेयर, विद द फ्लो चलने वाले लोग होते हैं, सबके साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं, दे आर नेचुरली वेरी हैप्पी विद इट। It's not that they are choosing a easy path, but they are naturally very okay with what's happening and they are very, very flexible people. तो you can say that they can adjust with anyone. Number 3 को आप कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं पाओगे, कभी उनकी बहस भी हो जाती है, they'll make sure that वो जाके ठीक कर लें, उनका झगड़ा किसी से नहीं होता। और इसका रीज़न ये है कि ना वो किसी में ज़्यादा घुसेंगे, ना किसी को अपनी लाइफ में ज़्यादा आने देंगे। Number 3 is very ambitious. ये शायद आप जब उनसे मिलो या उनसे बात करो ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत एम्बिशियस होते हैं अंदर से, ठीक है। और ये बहुत ही सटल तरीके के एम्बिशियस होते हैं, इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है और ये करते भी हैं। और ये एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि कभी गिव अप करना नहीं जानता। नंबर 3, नो मैटर इन वॉट जेंडर यू आर, इन वॉट रोल यू आर, वॉट जॉब यू आर डूइंग, वेयर यू आर इन योर एज ब्रैकेट, बट दिस नंबर विल नेवर गिव अप। किसी भी चीज़ पे ये कभी गिव अप नहीं कर सकते। बहुत ही डिपेंडेबल लोग होते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, ये कभी गॉसिप नहीं करते। यू विल नेवर फाइंड देम, क्योंकि गॉसिप स्मॉल टॉक है, जुपिटर बिग प्लैनेट है, तो कोई छोटी बात, किसी के पीठ पीछे वाली बात ये नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड दे ऑल्सो डोंट कैरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ अबाउट एनीवन। इनका जैसा कि मैंने कहा सबके साथ मिलके चलने वाला रोल होता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखते नहीं है किसी चीज़ को लेके। ये दिस नंबर इज़ नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशनल नंबर, ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं लाते हैं। आई एम बारिंग द एक्सेप्शनल केसेस, ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं लाते हैं यूजुअल लेवल पे, बिकॉज ये अपनी नॉलेज को, अपनी क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अगर ये कर पाएँ उस नॉलेज को सेटिस्फाई, तो ये फिर बहुत एक्सट्रीम के ज्ञान पे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, 12th January he was born. So until he met his guru, he had a very turbulent life. He was feeling very lost in his life, but he knew that he wanted something. और जिस दिन उनको उनके गुरु मिले, उनकी लाइफ, उन्होंने कितना जाइंट एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया के लिए। तो नंबर 3 को यही समझना पड़ेगा कि आपकी जो क्यूरोसिटी है ना, उसका लेवल बहुत एक्सट्रीम पे जा सकता है। अपने पोटेंशियल को आप चैलेंज करो एंड देन यू रीच अप टू दैट लेवल। ऑल्सो it's a suggestion, if you have any bent in spirituality you should always look for a guru. बिना गुरु के इतनी सारी नॉलेज, ज्ञान और एनर्जी को हैंडल करना फॉर नंबर 3 becomes very difficult. तो ये आप समझ नहीं पाओगे और आप बहुत रिबेलियस नहीं हो। That is why you will keep on struggling within yourself and you will consider yourself as very average, which you are not. So you need a guru. In case you have any bent towards spirituality, वैसे भी स्पिरिचुअलिटी आपका एक एलिमेंट है, बिकॉज यू आर नंबर 3, ओम से आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपके गुरु आपको मिलेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते या उस तरफ आपका कोई बेंट नहीं है, तो इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए यू मस्ट गेट इनटू एक्सरसाइज, योगा और एनीथिंग वेयर योर एनर्जी मेरिडियंस आर टेकन केयर ऑफ। कहीं पर भी अगर ये एनर्जी स्टक होगी तो या तो आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्पेशली फ्रॉम द फैमिली साइड, बिकॉज आप आउट गोइंग तो हो नहीं ज़्यादा, आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स तो है नहीं, आप बहुत ज़्यादा गॉसिप तो करते नहीं हो, तो वो वेंट आउट तो हो नहीं रहा अंदर का एनर्जी। लेकिन क्योंकि एज आई सेड इन द बिगनिंग दैट यू हैव अ टेंडेंसी टू डू वे बियॉन्ड देन योर कैपेसिटी फॉर अदर्स, तो उसको करने के लिए कमाते हो पहले वो सारा और फिर उसको देते हो सबको। तो इमेजिन यू आर डूइंग द डबल वर्क। सो इन दिस डबल वर्क योर एक्सपेक्टेशंस गो लिटिल हायर, और इस एक्सपेक्टेशन को जब आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो आपकी इतनी एनर्जी जो आपने लगाई उसका वैलिडेशन नहीं मिला, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन इज नॉट गुड, बट देन अगेन योर एनर्जी इज कमिंग इन टू रोल, सो यू विल गेट अ लिटिल मोर फ्रस्ट्रेटेड। तो उसको वेंट आउट करने के लिए, उसको ठीक से चैनलाइज करने के लिए यू शुड गेट इन टू एक्सरसाइज, एंड आई वुड स्टिल सजेस्ट मेडिटेशन, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू टू बैलेंस योर सेल्फ। अपने यूथ के उस करियर के स्टेज पे जब ये लोग होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, वैसे तो थ्रू आउट द लाइफ करते हैं बट उस स्टेज पे बहुत करते हैं, बिकॉज अगेन सोसाइटी प्रेशर इज सो हाई टू डू समथिंग रियली बिग फॉर देयर फैमिली, एंड प्लस यू माइट फाइंड देम वेरी ग्रीडी, आप इनको बहुत कंजूस समझ सकते हो,
के खर्चा नहीं करते, आप उनको ग्रीडी समझ सकते हो, लेकिन रीज़न ये है कि दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी वेरी वेल, क्योंकि मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया है। और जब कमाते हैं तो उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। वेरी सेंसिटिव पीपल, अगेन आप वो किसी के बारे में बात भी नहीं कर रहे, बट अगर सुनेंगे कि उनके बारे में बात है तो बहुत हर्ट हो जाएंगे, लड़ेंगे नहीं जाके, रिबेलियस नहीं है, लड़ेंगे नहीं जाके, बट बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे सामने वाले की बात से, बिकॉज द ओनली नेगेटिविटी ओवर हियर इज दैट यू डू विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप चाहे मानो या ना मानो, अगर आप कहीं भी लोअर प्लेन से ऑपरेट कर रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे कि मैंने इतना किया, क्योंकि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा करते हो। Too much you will do. Even if there is a guest coming whom you've not met for many years and they've just come for like 10 minutes to your house, आप पूरे घर की ऐसी साफ सफाई कर दोगे कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाए। You will go way beyond this thing. और अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम तारीफ नहीं करी या उनका कोल्ड रिएक्शन हुआ तो आप सैड हो जाओगे। मे बी यू विल नॉट डिस्कस इट और मेक इट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट येस यू विल गेट अफेक्टेड। दिस इज़ अ वेरी इनेट ट्रेट दैट आई एम टेलिंग यू। तो अपनी इज्जत कमाने के लिए, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के लिए, अपना एक ऑरा बिल्ड करने के लिए सोसाइटी में जो आपको बहुत मैटर करता है, उसके लिए यू रियली वर्क हार्ड। तो लोग उस एज में जब आप ये मेहनत कर रहे हो आपको सेल्फिश समझ सकते हैं, ग्रीडी समझ सकते हैं, यू नो, दे कैन हैव दीज misconceptions about these people, but actually what they are doing is building their independence for future, so that जब वो थोड़े एज में आए तो वहाँ पर उनके पास पैसा हो, एक इंडिपेंडेंस हो और वो किसी से मांगे नहीं। उनको ये बहुत मैटर करता है। जैसा मैंने बोला कि बहुत हेल्पफुल होते हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुल भी होते हैं। कमिंग फ्रॉम द ओल्ड ट्रेडिशंस ना, दूसरों की हमेशा रिस्पेक्ट की जाती थी पुराने ज़माने में, तो थोड़ा पुराना प्लानट है ये। तो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, दूसरों को सुनते हैं बहुत अच्छे से, और उनकी हर चीज़ की वैल्यू रखना जानते हैं ये लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपना काम बहुत तरीके से करते हैं। अब ये एक गाइडेंस भी है नंबर 3 वालों के लिए कि आपका एक इनर ट्रेट है टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अगर किसी भी स्टेज में आपको बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, यू नो, आई मीन आई एम टॉकिंग दिस जनरली अबाउट एवरी नंबर एंड एवरी सन साइन, दैट एनर्जीज कैन कम फ्रॉम एनी फॉर्म। तो आपको कौन सी एनर्जी कहाँ से अफेक्ट कर रही है ये आपको देखना पड़ेगा। जस्ट इन केस फॉर नंबर 3 यू फील दैट यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दैट मीन्स यू नीड टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। वाई? बिकॉज अगेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जुपिटर के पास मास बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ज़्यादा मैटर है उसके पास, तो उसको आपको चैनलाइज करना, आप उसकी एनर्जी से अफेक्ट हो रहे हो, तो आपको अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इस एनर्जी को चैनलाइज करूँ। और ये मजाक की बात नहीं है कि हाँ किया नहीं किया, anybody who's not taking care of these things will actually get affected very badly. And number 3 is such a subtle sign that you will suffer, you know, internally. किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, किसी को बोलेंगे लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, which is not good for you. So if I'm connecting with you, please make use of this advice and do something about it. इनको छोटे मोटे सक्सेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बड़ा सक्सेस चाहिए। इन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे हैं और ये उसको पूरा करने की ताकत भी रखते हैं। जैसा मैंने बोला ना कि दे डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। आप इनको बिल्कुल कहते हैं ना कि क्रैश डाउन करके मिट्टी में मिला दो, ज़ीरो कर दो, ये वहाँ से भी उठना जानते हैं। ये जब तक इनके अंदर सांस है ये गिव अप नहीं करेंगे, और ये 0 से 100 तक जाने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं, पूरा पोटेंशियल रखते हैं। यूथ एज में व्हेन यू आर मेकिंग योर करियर, अगेन एज आई सेड, फैमिली में थोड़े इम्बैलेंसेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन योर करियर। यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली, तो उस वजह से एक इम्बैलेंस आ जाता है। यू विल फील दैट इम्बैलेंस, इट्स अ वेरी जेनरिक ट्रेट फॉर देम, वेदर यू आर अ वुमन और अ मैन, यू विल फाइंड दैट इम्बैलेंस इन योर मिडिल एज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट जो नंबर 3 का होता है, हार्ड वर्किंग जो बंदा होगा वो कभी भी लेजी नहीं हो सकता। ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। किसी भी एज के नंबर 3 के इंसान से आप बात कर लो, बच्चा होगा या बड़ा होगा या मिडिल एज में या यू नो 40s में या ओल्ड एज में होगा, आप देखोगे इनका एक अपना रूटीन होगा। जो छोटी क्लासेस में बच्चे नहीं होते जो बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड अच्छे से तैयार होके आते हैं, द बेस्ट चाइल्ड ऑफ द क्लास, हुज द मोस्ट ओबीडियंट चाइल्ड, सब कुछ काम टाइम से होता है, बहुत कम बोलते हैं, हर चीज़ टाइम से करते हैं, दैट इज़ नंबर 3। तो वो क्योंकि वो ओल्ड ट्रेडिशन से आ रहे हैं, जैसे राम राज्य का कोई बच्चा आ गया हो, इस तरीके के इनके ये बच्चे होते हैं। और ये इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि ये कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देते, क्योंकि इनको अंदर से पता है 1 इनको बहुत फ़र्क पड़ता है सामने वाले से,
2, अगर किसी ने इनके बारे में कोई लूज कमेंट पास कर दिया, इनको बहुत बुरा लगेगा, तो ये अपनी जान लगा देते हैं काम करने के लिए। और फिर भी अगर इनको कुछ सुनना पड़ गया तो इनको बहुत बुरा लगता है, वो बात को दिल से लगा के बैठ जाएंगे और ये फिर सालों उस चीज़ को नहीं भूलते। सो प्लीज़ अदर्स नंबर्स, प्लीज़ डोंट ब्रेक देयर हार्ट, डोंट हर्ट देम। जहाँ पर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है पैसा कमाना, वहीं इम्पॉर्टेंट होता है कि ये फालतू का खर्चा नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। इफ़ सपोज यू आर स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वेस्ट नहीं होना चाहिए। कहाँ खर्च किया, कैसे किया, वो हिसाब चाहिए होगा इनको। सो यू विल हैव टू, इफ़ यू हैव समबडी एल्डर फिगर इन योर हाउस ऑफ नंबर 3, सो दे विल आस्क यू फॉर ऑल द हिसाब किताब। तो उसके लिए आप रेडी रहना। और उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो आपको रोक टोक कर रहे हैं, आपको रोकना चाहते हैं किसी चीज़ के, जस्ट दैट दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, तो वो आपसे भी पूछेंगे सो दैट यू वैल्यू मनी। अब आ जाते हैं थोड़े से नेगेटिव ट्रेड्स पे। नेगेटिव ट्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि आप खराब हो या आप बुरे हो। नेगेटिव ट्रेड्स का मतलब है वेयर यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और वेयर यू कैन, इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन हैव अ बेटर लाइफ। तो नंबर 3 का एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कुछ टाइम के बाद कि वो क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है और बहुत हार्ड वर्किंग है, सो दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर पर्सन। तो थोड़े से स्टबन हो जाते हैं। अब ये स्टबननेस जो आपको नंबर 3 की होगी ना, सरफेस पे नहीं दिखेगी। ये डायरेक्ट डिमांड नहीं करेंगे लाइक नंबर 1 लियोज एंड नंबर 8, नहीं, दे विल नॉट डू दैट। दे विल एक्सपेक्ट यू टू फॉलो इट एंड इन अ वेरी सटल मैनर दे विल कन्वे इट। फॉर एग्जाम्पल, चलो लेट्स डू दिस, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। जो भी इस काम की ये बात कर रहे हैं, वो काम आपको सरदर्द लगने लग जाएगा कि यार बाद में हो जाएगा। जहाँ पे आप एक लेड बैक एटीट्यूड दिखा सकते हो और नंबर 3 को लगता है कि काम है तो करना है, और वो काम ऑफिशियल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, जो है उसे ख़त्म करो। वाई टू जस्ट लिंगर अराउंड ऑन एनीथिंग। तो ये चीज़ सामने वाले को इनकी थोड़ी स्टबन नेचर लग सकता है कि ही इज़ ऑलवेज नैगिंग और ऑलवेज इज़ ऑन माई हेड। ये नंबर 3 को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है लोग आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप सामने बोलोगे तो शायद वो आपको सामने बोलेगा कि मुझे ये काम नहीं करना या अभी नहीं करना, लेकिन एक बड़े सॉफ्ट तरीके से जब कोई इंसान अप्रोच करता है तो सामने वाला उसको कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन वो एक इशू, एक एंगर थोड़ा सा आ जाता है कि यार व्हाई सो मच ऑफ डिसिप्लिन। और ऑब्वियसली कोई किसी के पॉजिटिव ट्रेट को पॉजिटिव तो लेता नहीं है आजकल बहुत ज़्यादा, तो नेगेटिव बोलना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए उसको स्टबन बोल दिया जाता है, डिक्टेटर बोल दिया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगेन इन द सेम मैनर द वे यू आर डिसिप्लिन, यू एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर पर्सन, वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्ट आ सकता है रिलेशनशिप्स में। दूसरा, इनका जो एक्सट्रीम साइड है ना, जहाँ पर हार्ड वर्क बहुत ही एक्सट्रीम पे चला जाता है, इनको ना सनक चढ़ जाती है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर घुस गए, किसी काम में घुस गए, तो ये जब तक उसको ख़त्म नहीं कर लेंगे इनको चैन नहीं आएगा, और जो इनके आसपास के लोग हैं उनको लगेगा ये तो गया। तो इस वजह से टू मच ऑफ हार्ड वर्क वेन एवर इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड एट सम प्लेस, दे विल गिव देयर 200%। और उससे क्या होगा, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, एंग्जाइटी बहुत आती है इन लोगों को, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हर काम करना है इनको कंप्लीट। और यही सनक है, इनफैक्ट कहते हैं ना कि जो हद से ज़्यादा जाता है वही किसी मुकाम पर पहुँचता है। ओनली कंडीशन इज़ दैट यू आर गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन, तभी ये बहुत ज़्यादा अपने पोटेंशियल को क्रॉस कर पाते हैं। आई रिमेंबर दिस केस ऑफ युवराज, ही इज़ ऑल्सो नंबर 3। जब उसे गुस्सा आया था तो ही हिट अ सिक्सर बैक टू बैक द एंटायर द ओवर, ही हिट अ 6। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी यू गाइस कैरी, कि मतलब अगर वैसे तो बिल्कुल नहीं वो आएगा गुस्सा, लेकिन अगर उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, एंड इट्स नॉट द एक्सटर्नल एग्रेशन, इट्स ऑलवेज इन योर वर्क, जहाँ पे जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो चुपचाप, ना किसी को दिखाना है ना किसी को सुनाना है, बस अंदर से अंदर करते रहना है। लेकिन ये बात सिर्फ नंबर 3 जानते हैं कि ये करते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए ही है, या अपनी सेटिस्फैक्शन के पे इतना ध्यान नहीं देते जितना ये दूसरों की सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देते हैं। इसलिए जब तक लाइफ में ट्रैक पे नहीं आ जाते और जब तक इनकी सोल बहुत इवॉल्व नहीं हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा अंदर से लोनली फील करते हैं, बिकॉज वॉट एवर दे डिड टिल नाउ वॉज फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, ईदर इफ इट वॉज ऑफ देयर फैमिली और was it was of their friends और external society. So eventually क्या होता है, धीरे धीरे जाते जाते खुद बहुत अकेले हो जाते हैं। नंबर 3 का ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट है कि नंबर 3 अकेले नहीं रह सकते, ये बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो भी किया दूसरों के लिए किया। तो आप इनको देखोगे कि इनको हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। प्लस ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते। I mean, they will be friendly if you talk to them, but they will not go out of the way to have a lot of friends in their group. तो
आगे एज में जाते जाते ये बहुत लोनली फील करने लग जाते हैं, तो इसलिए अकेला नहीं इनको छोड़ सकते, ये बिल्कुल अकेला नहीं रहना चाहते। इवन इफ यू गिव देम वन पर्सन दैट्स इनफ, दे माइट नॉट नीड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, बट ये अकेला नहीं रहना चाहेंगे। और इसका सिर्फ ये रीज़न है कि पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए किया, खुद के लिए नहीं किया। तो इस एक और गाइडेंस यहाँ से आता है कि नंबर 3 वाले को अपने लिए करना है। अपना मतलब कि अपनी सोल को नर्चर करना है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, इनर वर्क यहाँ पर आता है। यू आर अ इनर कोर स्पिरिचुअल नंबर, तो आपका जब एलिमेंट स्पिरिचुअलिटी है तो उससे खुद को फिल करो, ना कि एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए दैट आई हैव बिकम वेरी स्पिरिचुअल और आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट, पीपल डोंट केयर अबाउट इट मच। आपको जो करना है आप करो, उतना करो जितना आप कर सकते हो, नॉट दैट कि आप खुद को ही भूल जाओ दूसरों के लिए करते करते। और जो करना है, वॉट यू रियली नीड टू फोकस ऑन इज योर सेल्फ, योर इनर सोल, satisfy that, do your inner work, reach that peace and then nurture yourself. Careers जो नंबर 3 को यूजुअली सूट करते हैं, जहाँ पर डेफिनेटली दे वुड ऑलवेज लुक फॉर सम अथॉरिटी एंड पावर, बिकॉज गुरु अगेन द इनर ट्रेट इज लाइक दैट। ओके, सो स्पोर्ट्स में डेफिनेटली जा सकते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, बैंक्स वेरी गुड विद मनी, CA, you know, liquid flow of money they can handle very well, so they can do that. They can also be into occult science, number 3, right? तो occult science में भी बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 3, one more thing that you will find them morally very good, morally बहुत अच्छे होते हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि अंदर ओम बसा है तो गड़बड़ नहीं करेंगे, और अगर हो भी जाएगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो अंदर की सोल बहुत प्योर है, वैसे सभी की प्योर होती है, बट नंबर 3 हैज़ दैट एनर्जी ऑफ वेरी गुड मॉरल्स। तो नंबर 3 के लिए सिर्फ इतना ही गाइडेंस है कि हार्ड वर्क में अपने आप को एंग्जाइटी में, ओवर वर्क में प्लीज़ मत डालो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एज आई सेड कि पुराना प्लानट है, पुरानी थिंकिंग होती है, तो उस वजह से थोड़े रिजिड पैटर्न्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी स्टक हो जाती है, और इसकी वजह से अर्थराइटिस के इश्यूज़ या ब्लड प्रेशर, ये सब एनर्जी स्टक के इश्यूज़ हैं, तो ये आपको हो सकता है। लास्टली आई वुड से थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, अपने बारे में सोचना है, अपनी सोल को नर्चर करना है, एक्सरसाइज करनी है, एंड इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, डू लुक फॉर अ गुरु। दैट्स ऑल फॉर नंबर 3. आई होप यू enjoyed watching this video as much as I enjoyed making this. If you liked it, please like, share and subscribe with your friends and families. The information should reach the maximum people. In whatever way we can help, we should. I would like to conclude this video with a very important message, that understanding yourself and others begin with a healthy and happy mind. So, because of unfortunately, the lifestyle these days which we live is very stressful, and a lot of anxiety, and that weird lifestyle that we are in these days is leading to a lot of mental health issues. So I would request you all to be a little mindful about yourself and others around you, and take the action. Just don't think about it, take the action to reach out any professional. You can also reach out to me. I am a professional working in mental health industry for quite some time now, and you can reach out to me on Instagram. My handle is Vivolve1111. There is no phone number or any contact number given anywhere else. So feel free to reach out to me on Instagram, drop me a message, and I'll get back to you, and we'll take it further from there, one-on-one. So that's all for today. I wish you all a very healthy mind and happy life. Please take care of yourself. Thank you. Om Namah Shivaya.